Hi, good evening, everybody. This is Vasundhara. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today we're going to start with blood relations. नायब तहसीलदार का ये course है, and I'm sure by now, if you've seen the first video and the other videos of other subjects, you must be knowing ki what is Abhipedia offering, and I'll just run through it in a moment. Basically, you just go to the main portal, जिसका link हमारे description में video के दिया हुआ है, and you select choose exam which is on the home page. तो ये आपको डायरेक्टली सामने दिख जाएगा, where you go and click on Punjab Allied Exams, where you can reach to पंजाब नायब तहसीलदार एग्जाम. तो इसमें what do you see then? यहाँ से आप कहाँ पहुँचते हैं? Either you can choose the full video course where you will get this test series complimentary, or you can choose to buy test series separately. ठीक है? If you click on test series, this is what you get. ठीक है? Ultimately test series में है क्या? It is basically exclusively crafted for this exam specially. All three subjects are covered. तो I am sure आप लोगों को pattern पता होगा that there is 120 questions, and जिसमें general studies के you have 80 questions, and combined of LR and MA you have 40 questions. ठीक है? So we have 20 sectional tests and 10 full mock tests. So overall 30 tests are there, and it is not really expensive. और अब time कम है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उस को मद्देनज़र रखते हुए. सो दिस इज द नंबर दैट यू कैन कॉल इफ़ यू फेस एनी इशू वाइल परचेजिंग दिस. इसके अलावा वन थिंग दैट आई डिड नॉट डिस्कस इज माइक्रो कोर्सेज. ठीक है, इसमें यू कैन एक्चुअली गो टू आइदर वन ऑफ द कोर्सेज की सिर्फ आपको इसमें प्रॉब्लम है, लेट्स से मेंटल एबिलिटी में है, या आपको सिर्फ करंट जीके में प्रॉब्लम है, सो यू कैन गो देयर. और यू हैव अ प्रॉब्लम इन एलआर, देन यू कैन गो हियर. Also, you can purchase specific topics as well. So you'll really have to check कि क्या क्या available है. It is not really expensive. Just go check it out because practice के बिना थोड़ा मुश्किल है exam कोई भी crack करना. And let's start with what we are supposed to do. ठीक है? Alright. So the full course also I'll just let you know. This is the full course where you have 251 plus video lectures. Plus किस लिए लिखा है? Because GK जो है वो every week about 4 lectures keep adding on. So you have LR के 60 plus lectures हैं, mental ability के 40 से ऊपर हैं, general studies 50 से ज़्यादा lectures हैं, current GK के you have 110 plus lectures, and this plus keeps adding on every week. So you have GK जो हर हफ्ते 4 lectures add हो जाते हैं. So this is continuously increasing this number of lectures. Fine. So this is the complete course that you can go and check out. And with the complete course, of course, you will get the test series complimentary, which is otherwise for 3,999 rupees. ठीक है? हाँ जी. Let's look at the concept now. What chapter are we supposed to do? वो देख लेते हैं. So blood relations is what we're going to do today. Basically, concept क्या है blood relation का? That you have to identify that who is male or female. So first important thing that you're supposed to do is gender determination. ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जेंडर डिटरमिन करना है जिस भी बारे में बात हो रही है उसका. ठीक है, सपोज इफ यू आर आस्क्ड हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो आपको पता होना चाहिए कि डी का क्या जेंडर है, ई का क्या जेंडर है, फिर कनेक्शन बनाना बहुत आसान है. ठीक है, अदरवाइज इफ यू रैंडमली डू हिट एंड ट्रायल देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. एंड विद जेंडर, लेट्स से इस क्वेश्चन में, अभी लेट्स नॉट रीड द क्वेश्चन, सपोज इस क्वेश्चन में यू नो दैट हाउ इज डी रिलेटेड टू ई एंड यू फाइंड आउट अल्टीमेटली दैट डी इज अ फीमेल. सपोज आपको ये पता चल गया, इफ डी इज अ फीमेल देन सन, फादर, ब्रदर तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सीधा. यू कैन आइदर से इट इज डॉटर, डॉटर नहीं है तो यू कैन गो अहेड विद नन ऑफ दीज. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू चेक आउट, फर्स्ट तो जेंडर हो गया. ठीक है, सबसे पहली चीज यही हो गई. जेंडर के बाद आपने क्या करना है, जेनरेशन गैप इज द अदर थिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. इससे आपको पता चल जाता है कि डिफरेंस अगर एक जनरेशन का है तो क्या रिलेशनशिप होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट जनरेशंस में होता क्या है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेम जनरेशन, सेम में कौन कौन लोग होते हैं, यू हैव योर सिबलिंग्स, दैट इज योर ब्रदर, सिस्टर एंड कजन्स. ठीक है, सो सिबलिंग होंगे एक तो, और दूसरा जो है कजन्स होंगे. फाइन, दे आर द सेम जनरेशन. इफ यू टॉक अबाउट वन अप, एक जनरेशन ऊपर की अगर बात करें, तो वो होंगे आपके फादर मदर या आपके अंकल आंट. ठीक है, सो अंकल एंड आंट कैन बी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल.
They can be chacha taya also, and they of course can be mamas also. Similarly goes for aunts. They can be masis, chachis, buas, कुछ भी, सारा कुछ इसमें include हो जाता है. This is plus 1 generation. So we are talking about 1 generation up. Let's look at plus 2 generation. जो 2 जनरेशन आपसे ऊपर होगा वो होगा आपका ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट का आगे कोई ब्रदर सिस्टर होगा. ग्रैंड पेरेंट कैन बी paternal, maternal both. So paternal will be dada and dadi. Father's parents, father is going to be grandfather, paternal grandfather. Father's mother is going to be paternal grandmother, and so on. तो ये वैसे चलता रहता है, ठीक है. I hope these two are the basics that are really required for blood relations. इसके अलावा आपने बेसिकली फैमिली ट्री बनाते जाना है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें कौन मेल है कौन फीमेल है. सिंबल्स आपने अपने हिसाब से रखने हैं, जो आप आज तक करते आ रहे हैं वही यूज करिए. आई विल यूज सर्कल फॉर फीमेल एंड स्क्वायर फॉर मेल. यू कैन गो अहेड विद प्लस माइनस, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, एनीथिंग दैट यू प्रेफर. इट इज योर चॉइस, यू कैन गो अहेड विद इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट उसको याद रखो, एक सिंबल बना लो और उसको याद रखो, उसमें कंफ्यूज नहीं होते रहना बारी बारी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. आई होप यू अंडरस्टूड कि करना क्या है इस चैप्टर में. फाइन. हाँ जी, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 6 persons in a family, that is A, B, C, D, E and F. A is the mother of B. Who is the brother-in-law of C? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे. A is the mother of B. ठीक है, सपोज B is this one. A इसकी मदर है, मदर हो गई फीमेल. ऑल्सो वी विल रिप्रेजेंट, ये वर्टिकल लाइन से अप एंड डाउन जनरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग सेम जनरेशन रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसके अलावा डबल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक कपल को रिप्रेजेंट करेगी. उस कपल में एक फीमेल होगी एक मेल होगा. सो दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ. फाइन. हाँ जी, इफ यू लुक एट दिस वन, A इज द मदर ऑफ B. इससे ये पता चला कि A तो मदर है B की, बट B सन है या डॉटर है वो अभी तक नहीं पता चला. फाइन. सो व्हाट विल यू डू? B, who किसके लिए यूज होता है? सेकेंड पर्सन इन द स्टेटमेंट के लिए. इफ एंड वुड हैव बीन देयर, वो एंड किसके लिए होता? A के लिए, ठीक है. सो दिस डिफरेंशिएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड. हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ C? कौन है ब्रदर इन लॉ ऑफ C? B. B जो है ब्रदर इन लॉ ऑफ C है, यानी कि C इसके सेम जनरेशन में कहीं होगा, ठीक है. ब्रदर इन लॉ है तो 2-3 तरीकों से ब्रदर इन लॉ हो सकता है. लेट्स सी कि ये कौन से तरीके से है. C is the husband of D. That means C is husband, मतलब C is going to be male. किसका हस्बैंड है? D का. That means D has to be female. अगर ये ब्रदर इन लॉ है तो यानी कि ये खुद तो मेल हो गया क्योंकि ये ब्रदर इन लॉ है. बट ये ब्रदर इन लॉ कैसे है? इसकी सिस्टर का जो हस्बैंड है वो C है, यानी कि B has become the brother in law of C and C is also the brother in law of B. Both are also males. So this clarity has come in now, with D being B's sister and D being C's wife and B and D being the children of A, who is the mother. तो उसके 2 बच्चे हैं, एक सन है एक डॉटर है. आगे कोई बच्चे आएंगे तो we'll talk about it. F is the only child of D. D यानी कि ये जो लड़की और ये इसका हस्बैंड है, इनका एक बच्चा है F और एक ही बच्चा है, ओनली चाइल्ड है. अब ओनली चाइल्ड में वी डोंट नो द जेंडर कि ये मेल है या फीमेल है, सो वी विल कीप इट लाइक अ क्वेश्चन मार्क. वी विल नॉट रियली पुट अ जेंडर टू दिस. इस पे कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दो. इफ यू एक्चुअली डोंट नो द जेंडर, लीव इट खाली ऑल्सो. Whatever suits you, you can do that. E has 2 children and is married to A. A कहाँ है? ये. इससे कौन मैरिड है? E. तो E has to be male because A मदर थी तो इसको फादर होना पड़ेगा. 2 चिल्ड्रन है यानी कि सिर्फ B और D ही बच्चे हैं, ठीक है. ये दोनों बच्चे हैं. बेटी इनकी जो है, जो A और E की बेटी है, शी इज मैरिड टू C and this couple has an only child F whose gender is still not known. The question says how is D related to E? D E से कैसे related है? सबसे पहले तो D क्या है? फीमेल है. दैट मीन्स सन, फादर, ब्रदर तो हो ही नहीं सकती थी. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब आपने D का जेंडर डिटर्मिन कर लिया तो डेफिनेटली वैसे ही कहाँ पता चल गया था D? C इज द हस्बैंड ऑफ D. यहीं पे पता चल गया था कि D फीमेल है. अगर C उसका हस्बैंड है तो D को वाइफ होना पड़ेगा. यू डिड नॉट रियली नीड टू डू द एंटायर थिंग, बट दिस क्वेश्चन हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स नॉट विजिबल. बट एक E ऑप्शन नन ऑफ दीज है. सपोज अगर ये ऑप्शन ना होती पेपर में, अगर ये ऑप्शन ना होती, देन ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था, आगे पढ़ना भी नहीं था. बिकॉज वहां ही पता लग गया C इज हस्बैंड ऑफ D, मतलब D इज फीमेल. इफ D इज फीमेल, सन, फादर, ब्रदर हो ही नहीं सकती, बात ही खत्म. जस्ट बिकॉज नन ऑफ दीज है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली,
यू विल हैव टू चेक कि डॉटर है कि नहीं. अगर डॉटर नहीं है, फीमेल है तो कुछ भी हो सकती थी, मदर भी, डॉटर इन लॉ भी, ग्रैंड डॉटर भी, एनीथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल, सिस्टर ऑल्सो. बट नन ऑफ दीज होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एज इन कंफ्यूजन नॉट कंफ्यूजन, बट यू रियली हैव टू चेक कि डॉटर पक्का है कि नहीं. यहां से दिखाई दे रहा है कि ई इज द फादर, ए इज द मदर, बी इज द सन, डी इज द डॉटर, सो शी इज डॉटर एनी विच वे. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. फाइन. It does not take this much time. I am taking this much time to explain each and every line to you. I am sure कि आपको समझ में आया होगा कि करना कैसे है. टाइम इतना नहीं देना है इस क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट से कम लगेगा इसमें, बट करना कैसे है पहले वो देख लो, सीख लो. क्योंकि कुछ लोग अगर मतलब वैसे तो इट्स टू लेट. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू नो दिस बाय नाउ, सो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस और अ रिविजन क्लास फॉर यू. But those of you who are new, you should understand what exactly is being done. Fine. Moving on to the next question. A is B's daughter. A जो है B की daughter है. So A is the daughter of B. इससे B का gender नहीं पता चलता. ठीक है. इन statements में बड़ा ध्यान से देखना होता है that when you say A is B's daughter, जो भी हमेशा बाद में लिखा होता है ना, second person लिखा होता है statement में, ऐसी statements में जो एक single relationship बताती हैं, उसमें जो सेकंड पर्सन का जेंडर हम कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते अनलेस कोई फॉलोइंग स्टेटमेंट उसका जेंडर बताए. सिर्फ मान लो क्वेश्चन है ही इतना, ए इज बी इज डॉटर, सिर्फ इतना सवाल है. अगला सवाल है कि बी ए का क्या है. ए तो बी की डॉटर है, विच इज फाइन, बट व्हाट इज बी टू ए, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बिकॉज नथिंग इन द क्वेश्चन टेल्स यू इफ बी इज द फादर और द मदर. ठीक है, वहां वो कहीं से नहीं पता चलता. ऑफ कोर्स ऑप्शन से आप निगेट कर सकते हो चीजें कि अगर सिर्फ फादर ऑप्शंस में दिया है तो ग्रैंडफादर, ब्रदर, सन तो हो ही नहीं सकता, तो यू विल हैव टू चूज फादर. दैट वी विल सी इन फर्दर क्वेश्चंस कि कैसे होता है. फाइन. हाँ, अभी तो ये वाला सवाल करते हैं. ए इज बी इज डॉटर, इतना बना लिया. बी इज सी इज मदर. सो बी किसकी मदर है? सी की मदर, यानी कि फीमेल. किसकी? सी. एक और बच्चा है इसका. ठीक है, देखो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है सी और ए को, बिकॉज ये सेम जनरेशन के यानी कि ब्रदर सिस्टर है. ठीक है, ब्रदर सिस्टर वी डोंट नो बिकॉज सी का जेंडर नहीं पता. ये देखो वैसी ही स्टेटमेंट होगी बिल्कुल ही, बी इज सी इज मदर. सिर्फ इतना पता चला कि बी मदर है, यानी कि बी फीमेल का पता चल गया, बट सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, तो सी पे अभी मैंने कोई जेंडर नहीं रिप्रेजेंट किया. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट सेज डी इज सी इज ब्रदर. इससे भी ये नहीं पता, सेकेंड पर्सन अगेन सी, फिर नहीं पता चल पाया कि सी का जेंडर क्या है. डी ब्रदर है ये पता चल गया कि डी मेल है, सी फिर भी नहीं पता चला अभी तक कि मेल है या फीमेल है. सो यू विल नॉट अज्यूम कि सी का क्या जेंडर है, अपनी मर्जी से कोई अजम्पशन नहीं लेनी. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी और ए का क्या कनेक्शन है? अगर सी इसका भाई या बहन है ए का, और ए बहन है, और डी सी का भाई है, तो डी ए का भी तो भाई है. डी रिलेटेड टू ए. ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर, वो अगर पूछता है कि ए रिलेटेड टू डी, अगर ये सवाल है कि ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए डी का क्या लगता है या लगती है, तो ए डी की क्या लगती है? सिस्टर है. ठीक है, ए इज सिस्टर बट डी इज ब्रदर. ठीक है, ये ब्रदर है, वो सिस्टर है. दिस यू हैव टू टेक केयर. द क्वेश्चन इज आस्किंग यू डी रिलेटेड टू ए. डी क्या है? डी इसका ब्रदर है, सो ऑप्शन सी यू विल गो अहेड विथ. ठीक है. हाँ जी, मूविंग ऑन. पी इज क्यूज ब्रदर. सो पी इज क्यूज ब्रदर. यू नो पी ब्रदर है किसका? क्यू का, बट क्यू का जेंडर नहीं हम रिप्रेजेंट कर सकते. आर इज क्यूज मदर. इससे फिर भी इसका नहीं पता चला. आर का पता चल गया कि आर मदर है, क्यू का जेंडर अभी भी नहीं हमने पता चला. ठीक है. एस इज आर्स फादर. आर के आगे फादर है एस, मेल. ठीक है, आर का तो जेंडर पता चल गया था पिछले स्टेटमेंट से, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. टी इज एस इज मदर. ओके, देयर इज वन मोर. टी जो है इसकी मदर है. इज इट विजिबल? या. ठीक है, ये तो काफी ऊपर जनरेशन चली गई. हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी टी से कैसे रिलेटेड है? हाँ जी, कैसे रिलेटेड है, कैसे जाओगे? यू नो दैट वन जनरेशन अप इज पेरेंट, नेक्स्ट जनरेशन अप इज ग्रैंड पेरेंट, नेक्स्ट जनरेशन अप इज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होता है, यानी कि P
P रिलेटेड टू T कैसे होगा? P क्या है इसका? ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है, तो दिस T रिलेटेड टू P अगर पूछता तो T क्या है? ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, T इज ग्रेट ग्रैंड मदर टू P, बट P इज ग्रेट ग्रैंड सन टू T। ठीक है, सो 4 जनरेशन जब आएंगी बीच में तो यू विल इन्वॉल्व द ग्रेट वाला रिलेशनशिप। फाइन, बंदे ग्रेट नहीं हो गए, बस रिलेशनशिप ग्रेट हो गया कि इतने सारे एक साथ जिंदा कैसे हैं, सिर्फ वही ग्रेटनेस है इसमें। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A is the sister of B, so A is the sister of B. Fine, B is the brother of C. B क्या है? ब्रदर। अब इसका जेंडर पता चला, जैसे जैसे सेकंड पर्सन आता जाएगा सेकंड पर्सन का जेंडर मिलता नहीं, मतलब वो अननोन रहेगा। A is the sister of B, तो यहां B का अननोन था, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज B is the brother of C, यहां B का नोन हो गया, C का अननोन रह गया। C is the son of D, यानी कि ये भी सन पता चल गया किसका? D का, बट ये नहीं पता चला कि D मदर है या फादर है। ठीक है, सो हाउ इज D रिलेटेड टू A? वैसे तो आंसर कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है, बट इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस कि D A से कैसे रिलेटेड है। A देखो, A बहन है, B भाई है, C भाई है, ये तीनों बच्चे सिबलिंग्स हैं आपस में। ठीक है, 2 भाई 1 बहन है, बट ये किसके बच्चे हैं? D के बच्चे हैं। D वी डोंट नो if it's the mother or the father, but if you look at the options, D is definitely not the daughter, D son भी नहीं है, D uncle भी नहीं है। ठीक है, तो या तो मदर है या फादर है, बट अगर ऑप्शन में दिया होता कांट बी डिटर्मिन्ड, अगर CBD ऑप्शन होती कांट बी डिटर्मिन्ड तो आप कांट बी डिटर्मिन करते, बट ये ऑप्शन है ही नहीं, so the only option available is mother. So this is what I was saying, that sometimes you may have one option which is actually cannot be determined, because you can't really say कि ये मदर है या फादर है जब तक सवाल और कुछ बताता नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा, बट ऑप्शंस आपको लिमिटेशन दे देती हैं कि या तो मदर है या कुछ भी नहीं है इनमें से, तो ऑब्वियसली मदर ही है, फिर फादर का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, या कांट बी डिटर्मिन्ड नहीं दिया, या नन ऑफ दीज भी दिया होता तो नन ऑफ दीज वुड हैव बीन द आंसर। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली इट इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, तो नन ऑफ दीज भी नहीं है, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड फॉर यू एज ऑफ नाउ। फाइन, मूविंग ऑन। A is B's brother, so A is B's brother, यानी कि A ब्रदर है B का, B ब्रदर है सिस्टर है नहीं पता। C is A's mother, C A की मदर है। ठीक है, D is C's father, D इसका फादर है। E is B's son, E इसका बेटा है B का। How is D related to A? B का जेंडर हमें चाहिए ही नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। E का भी क्या इससे कनेक्शन आया बीच में, वो भी रिक्वायर्ड नहीं था, अनलेस कोई बीच में जनरेशन आती तो डिस्टर्बेंस होती। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वी कुड हैव डन विदाउट इट ऑल्सो एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। द रिलेशनशिप दे आर आस्किंग इज D एंड A, वो पूछ रहा है D A से कैसे रिलेटेड है, तो D कितनी जनरेशन ऊपर है? +1 एंड +2, दैट मीन्स D हैज टू बी द ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट का एक ही ऑप्शन है, ग्रैंड फादर। यू हैड टू गो विद दिस एनी विच वे, यही चूज करना था, बट वैसे ही फादर किस लिए? क्योंकि पता है कि ये मेल है, तो मेल ग्रैंड पेरेंट कौन सा होगा? ग्रैंडफादर ही होगा। वो मैटर्नल है पैटर्नल है वो बाद की बात है, वो सवाल पूछ ही नहीं रहा है। वैसे इस केस में मैटर्नल है, बिकॉज ए की मदर के फादर है, यानी कि नाना की बात हो रही है। सो वी डोंट रियली केयर कि ये ग्रैंडफादर मैटर्नल है या पैटर्नल है, नाना है या दादा है, इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द ग्रैंड पेरेंट, एंड यू कैन एक्चुअली निगेट ऑल अदर ऑप्शंस विदाउट इवन फाइंडिंग आउट द जेंडर्स। सिर्फ आपको अगर यही दिखाई दे गया है कि 2 जनरेशंस का गैप है, 2 जनरेशन ऊपर है D, तो उससे वो ग्रैंड पेरेंट ही होगा, दैट्स द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। फाइन, हाँ जी, मूविंग ऑन। A is B's sister, A is the sister of B, B का जेंडर अननोन, C is B's mother, C इसकी मदर है B की, ऑब्वियसली A की भी है फिर। D is C's father, D is C's father, B का जेंडर नहीं पता चला अभी तक। E is D's mother, E आगे इसकी भी मदर है। Then how is A related to D? A related to D again. ठीक है, अब A का D से कनेक्शन है, पिछले सवाल में D का A से था। Now you have to go 2 generations down, A related to D,
ए का क्या रिलेशन है, डी से कितना नीचे आना है, -1 -2, दैट मीन्स दिस हैज टू बी द ग्रैंड चाइल्ड, एंड ये दिखाई दे रहा है कि ये फीमेल है, तो फीमेल ग्रैंड चाइल्ड क्या होता है, पोती या दोती कुछ भी हो सकती है, तो इट हैज टू बी द ग्रैंड डॉटर. इन दिस केस इट इज दोती. वाई? बिकॉज इट इज डीज डॉटर्स डॉटर. ठीक है, सो दिस ए के लिए ये नाना है, एंड ये नाना की मदर है, ये मदर है. बी इसका भाई या बहन है, उससे कोई लेना देना है नहीं सवाल में. ठीक है, जस्ट द फैमिली ट्री हेल्प अस फाइंड आउट एवरीथिंग. सपोज इसके साथ रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और होते तो यू कुड हैव आंसर्ड देम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस फैमिली ट्री. ठीक है, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक अ फैमिली ट्री विद ईच स्टेटमेंट, बट यू हैव टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि वो कितनी जल्दी कैसे बन सकता है. और आप अगर कोई अननेसेसरी स्टेटमेंट है तो उसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे बी का इसमें कुछ भी होना जरूरी नहीं था, पता नहीं, मतलब पता लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे ही पता चल गया था कि ए इज बी सिस्टर, सी इज बी मदर. सी अगर बी की मदर है और ए की सिस्टर है तो सी ए की भी मदर ही हो गई. ठीक है, एंड डी इज सी इज फादर, तो डी जो है सी के फादर है, तो यानी कि एक जनरेशन और इससे ऊपर आ गए. ये ए इज बी सिस्टर, ये फीमेल हो गई, सी मदर हो गई इसकी, सी के फादर ये डी हो गए, और ए और डी में ही कनेक्शन पूछ रहा है, तो ई इज डी इज मदर हमें चाहिए नहीं थी, रिडंडेंट स्टेटमेंट थी, कोई जरूरत नहीं थी. बी का कोई लेना देना जेंडर से था नहीं, तो वो भी चाहिए नहीं था. सिर्फ इतने से भी आपका काम चल सकता था. सो यू कैन डू दीज थिंग्स ओरली ऑल्सो, but just to be on the safer side, it is better to make this little family tree so that you don't like you avoid any mistakes or any confusion in the end. ठीक है, पेपर में गलती नहीं करनी है, चाहे इसमें लगते 10 seconds ही हैं. These questions are actually less than 10 seconds, but spend these 10 seconds. If you try to save these 10 seconds, it can be negative marks. ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है. Of course, इस पेपर में नेगेटिव नहीं है, but otherwise generally speaking if you are attempting any other papers also you should know कि अगर 10 सेकंड लगा के सही आंसर आ रहा है तो why not. नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो वो अलग बात है, ना हो तो भी लॉस ऑफ मार्क्स तो है. देखो कि सही का मार्क जो मिलना था वो नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट हो गई. बट गलत अगर नेगेटिव मार्किंग है किसी एग्जाम में तो वो लूज कर दिया आपने 10 सेकंड बचाने के चक्कर में. ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि यू वाइजली एंड जुडिशियसली यूज योर टाइम and where it is required, not just everywhere. जो बिल्कुल चीजें नहीं आती हैं या नहीं समझ आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, उस पर टाइम मत खराब करो. लाइक इफ यू आर स्टक एट सम पजल और समथिंग मे बी लेट्स से, एंड यू कांट गेट टू फाइंडिंग द सोल्यूशन, देन जस्ट डोंट कीप वेस्टिंग टाइम ऑन दैट. उस पर ऐसे 8-9-10 मिनट नहीं लगा देने. लाइक टेक दैट वाइज डिसीजन एट दैट टाइम, लीव दैट क्वेश्चन, मूव अहेड, यू कैन कम बैक टू इट. अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है और क्वेश्चन नहीं करने को मिल रहे, फिर अटेम्प्ट कर लो चाहे उसको. ठीक है, बट जो आता है और जो इजी है उसको फटाफट करने की कोशिश करो. फाइन. हाँ जी, B is the brother of A. So B is the brother of A. Whose only sister is mother of C. Whose यानी कि whose किसकी, A की only sister, एक और sister है, क्योंकि ये तो brother है तो only sister एक और होनी चाहिए, is mother of C. This sister is mother of C. D is maternal grandmother of C. Maternal grandmother मतलब यानी कि इसकी मदर की मदर जो है वो कौन है, D. मैटरनल ग्रैंडमदर क्या हुई, नानी. किसकी नानी, C की नानी की बात हो रही है, C की मदर की मदर. हाउ इज A रिलेटेड टू D? A इज द चाइल्ड ऑफ D. इट इज वेरी क्लियर कि ये सिस्टर है इसकी. ठीक है, अगर ये सिस्टर है, सिस्टर की मदर इसकी भी मदर हुई, तो A रिलेटेड टू D कैसे, A क्या है, चाइल्ड. बट वी डोंट नो कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, बिकॉज उसकी डिस्कशन कहीं नहीं हुई. चाइल्ड में डॉटर इन लॉ नहीं आता, आंट नहीं आता, नेफ्यू नहीं आता, सो यू विल हैव टू गो विद डॉटर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, अगर डॉटर या सन होता तो भी आपने यही चूज करना था, क्योंकि अगर ये बॉय है तो भी ओनली सिस्टर इसकी यही है, अगर ये खुद गर्ल है तो भी ओनली सिस्टर इसकी यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खुद की सिस्टर नहीं हो सकती. ठीक है, बी की ओनली सिस्टर की बात नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं ए की ओनली सिस्टर. अगर बात होती कि बी की ओनली सिस्टर है एक, तो ये सिस्टर होती वो, देन ए वुड हैव बीन द सन. बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए इज ओनली सिस्टर, तो ए अगर फीमेल भी है देन ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम इन हैविंग ओनली वन सिस्टर, क्योंकि ये दूसरी सिस्टर है. लेट्स से इसका नाम एक्स है. ठीक है, ये खुद को थोड़े ना सिस्टर बोलेगी अगर ये लड़की हुई तो भी. ठीक है, सो देयर यू हैव टू चूज daughter if
this option is not available. Either son or daughter is not available, cannot be determined is not available. जहां ये options available हो गई, then you might as well choose any one of these. ठीक है, son नहीं choose करना obviously, मतलब सिर्फ son अगर option है तो son choose करना है, सिर्फ daughter option है तो सिर्फ daughter choose करना है, either son और daughter है तो वो choose करना है, cannot be determined है तो वो choose करना है, child है तो वो choose करना है. ठीक है, you can go ahead with any of these options डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी. ठीक है, कि क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो देखना है आपने. ठीक है, हाँ जी. E इज द सिस्टर ऑफ B, सो E इज द सिस्टर. B का जेंडर नहीं पता चला. A इज द फादर ऑफ C. A और C कोई है ही नहीं अभी, तो किसको फादर किसको चाइल्ड क्या किधर करें. बट अगला स्टेटमेंट देखो, B इज द सन ऑफ C. B किसका बच्चा है? C का सन, यानी कि ये हो गया मेल. फिर पहली वाली स्टेटमेंट पढ़ो, A इज द फादर ऑफ C. C का फादर A है, अभी भी C का जेंडर नहीं पता चला. B इज सन ऑफ C, तो C फादर या मदर कुछ भी हो सकता है. एंड A इज फादर ऑफ C, तो ये मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नाउ इट सेज हाउ इज A रिलेटेड टू E. A और E का कनेक्शन पूछ रहा है, तो C के जेंडर की तो हमें जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली वी डोंट नीड इट. A रिलेटेड टू E. A इज इन द अपर जनरेशन. हाउ मेनी अपर जनरेशन? +1 एंड +2. दो जनरेशन ऊपर है. दो जनरेशन ऊपर होने का मतलब है इट्स द ग्रैंड पेरेंट. अब ग्रैंड पेरेंट में कौन सा ग्रैंड पेरेंट है? मेल है तो इट हैज टू बी द ग्रैंड फादर नो मैटर व्हाट. ग्रैंड डॉटर तो A है, सॉरी E है. E रिलेटेड टू A पूछा होता तो ये फीमेल थी, तो बोलते आप ग्रैंड डॉटर. बट उसने A टू E पूछा है तो ग्रैंड फादर. इट इज द सेम थिंग एज सेइंग कि ABC मेरे दादा हैं और मैं ABC की पोती हूं. इट्स द सेम थिंग एज दैट कि A मुझसे कैसे ABC मुझसे कैसे रिलेटेड है? ABC मेरे क्या लगते हैं? दादा. मैं ABC की क्या लगती हूं? पोती. सो दिस कंफ्यूजन has to be avoided कि किसका किससे रिलेशन पूछ रहे हैं वो जरूरी है आंसर करना. फाइन, हाँ जी. C is the wife of B. ओके, कपल है, मैरिड कपल है. C वाइफ है तो पता चल गया फीमेल है, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करो. B मेल है, डबल लाइन हॉरिजॉन्टल से कपल को रिप्रेजेंट करो. E is the son of C. E इनका सन है तो मेल है, ये भी पता चल गया. A is the brother of B. A is the brother of B. And father of D. Who? And किसके लिए यूज हो रहा है ये? And यूज होता है फर्स्ट पर्सन इन द सेंटेंस के लिए. A is the brother of B and father of D. तो and किसको कनेक्ट कर रहा है? इस A को. So it basically means A is the brother of B and A is the father of D. So A has to be the father of D. We don't know D's gender. वो कहीं नहीं बताया because D is the second person in this statement. सेकेंड पर्सन का वेग जेंडर होता है अनलेस स्पेसिफाइड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं बी के बारे में कोई, सो यू विल रियली हैव टू कीप दिस अ सस्पेंस. ठीक है, इसका जेंडर नहीं पता. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ E टू D? E और D आपस में कैसे कनेक्टेड है? E जो है B का बच्चा है, बेटा है. ठीक है, और B और A भाई हैं, और D जो है A का बच्चा है. दोनों भाइयों के बच्चे आपस में क्या होते हैं? कजन्स होते हैं. दे आर नॉट ब्रदर्स. ब्रदर्स होते हैं रियल, ठीक है, ब्लड रिलेटेड होते हैं. मदर और सिस्टर वाली तो बात ही खत्म हो गई. ठीक है, सिस्टर का तो पता ही नहीं है बिकॉज इसका जेंडर नहीं पता. ब्रदर भी इसका जेंडर नहीं पता. और वैसे ही ब्रदर और सिस्टर जो होता है ना, ये होता है रियल रिलेशंस में. रियल मतलब एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स के आगे अगर बच्चे हैं, कोई 3-4 और इसके E के भाई बहन होते, दोज वुड हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर. बट द अंकल्स, ये फादर का ब्रदर यानी कि A इसका अंकल है, अंकल का बच्चा जो है दैट हैज टू बी कजन. कजन कैन बी फीमेल और मेल कजन अनलेस स्पेसिफाइड. यहां जेंडर ही नहीं दिया तो वैसे ही स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे, तो यू हैव टू गो हेड विद इट. एंड मदर हो ही नहीं सकता बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम जनरेशन की बात हो रही है. देखो, ठीक है, एक ही जनरेशन में, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि जो एक ही जनरेशन के लोग हैं, दे कैन आइदर बी सिबलिंग्स और दे कैन बी कजन. सिबलिंग्स इंक्लूड्स योर ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है, मल्टीपल ऑल्सो इज पॉसिबल. ठीक है, F इज द ब्रदर ऑफ A. F इज द ब्रदर ऑफ A. C इज द डॉटर ऑफ A. C इसकी डॉटर है.
ए का जेंडर नहीं पता लगा. के इज द सिस्टर ऑफ एफ. के इसकी सिस्टर है. जी इज द ब्रदर ऑफ सी. जी इसका ब्रदर है. ठीक है. हु इज द अंकल ऑफ जी. जी का अंकल कौन है? जी इसका ब्रदर है. ये इसका पेरेंट है. ए इज द पेरेंट. वी डोंट नो इफ दिस पेरेंट इज ब्रदर मदर और फादर. वी डोंट नो इफ ए इज मदर और फादर, बट वी डोंट केयर. उसने क्या पूछा? अंकल कौन है जी का. जी का अगर ये माँ या बाप कोई भी हो, लेट्स से ये मदर है, तो ये मामा हो गया, तो भी अंकल है, बिकॉज ये तो मासी हुई. बट इफ दिस इज फादर, इफ यू लुक एट इट लाइक दैट, ब्लू केस मान लो, अगर ये फादर है तो फादर का भी ये अगर ब्रदर है, सो दिस बिकम्स अंकल अगेन, बिकॉज चाचा या ताया जो भी है बड़ा छोटे पे डिपेंड करेगा. बट ये क्या हो गई? फादर की सिस्टर यानी बुआ. सो अंकल इन बोथ केसेस हैज टू बी एफ, नो मैटर इफ दिस इज मदर और फादर. डिपेंड ये करेगा कि ये अंकल मैटरनल हो गया या पैटर्नल हो गया ए के जेंडर पे. तो अगर ए का हमें जेंडर नहीं भी पता, देन ऑल्सो इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू विल स्टिल से कि जी का जो भी पेरेंट का ब्रदर है, दैट पर्सन हैज टू बी द अंकल. इट डज नॉट मैटर दैट इफ इट इज पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल. फाइन. So I hope it is clear. हाँ जी, and that's it. So I really hope that you've understood whatever we've done today in this class. तो blood relations वैसे बड़ा easy chapter है, इसकी practice अच्छे से कर लो तो बहुत tough है नहीं. And this is the level of questions that you're going to encounter in this paper, especially in the नायब तहसीलदार paper. But थोड़ा सा इसे high level भी practice कर लो, just in case they might ask some difficult question, तो आना चाहिए. ठीक है. We haven't done it because this is the actual paper level that I was trying to cover in today's lecture. But you can always go ahead with seeing other videos on the channel. And of course, you can go ahead and buy the full course where we have detailed lectures on each topic. So there are at least 3 to 4 lectures of each topic. जहाँ पे बिल्कुल starting basic level से जाके advanced level तक, mains level तक के भी questions हम लोग करते हैं in the second phase of the papers. So that is there covered in the entire full courses. So you can check those out. You can check out the demo videos of those lectures, of course. And उसके अलावा टेस्ट सीरीज तो आप जरूर बाय कीजिए, बिकॉज इट इज हाई टाइम दैट यू रियली प्रैक्टिस वट एवर यू डन. जो सिलेबस आप कवर कर चुके हो उसको तो प्रैक्टिस अब कर लो प्लीज, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया है पेपर को. तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यू वोंट रियली नो कि आपका आज क्या लेवल है और कहाँ जाना है आपको. जब तक आपको वो गैप नहीं पता चलेगा ना, आप तैयारी आपको पता ही नहीं चलेगा वेयर यू लैक. सपोज इफ यू टेक टेस्ट एंड यू रियलाइज कि आपको इन 4 टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, दोज 4 टॉपिक्स यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन द पोर्टल. वो आप माइक्रो कोर्सेज यू कैन बाय. ठीक है. सारा कुछ भी अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो मत लो, जिसमें प्रॉब्लम है सिर्फ वही देख लो एक बार जाके. एंड यू कैन जस्ट you can try with buying just one little micro course. You can at least try, and then if it works for you, you go ahead with other things. And those micro courses are very cheap, mind you. So just go on the portal, check things out and see for yourself. If it helps, please spread the word. सबको बताइए हमारे बारे में. And I hope that you've understood and you took something from this lecture. And thank you so much, and I'll see you in the next class with a new topic. And keep tuned to the channel for other things. So please press the notification button, the bell icon that you call it, and so that you keep getting notifications on time of whatever lectures are going to be uploaded as soon as possible. ठीक है. And portal पे भी register करो so that you get emails prior, like 1 day prior आपको emails आ जाती हैं कि next कौन सी class कब scheduled है. Alright, thank you everybody. Bye. See you in the next class, and all the best for all those who are appearing for the नायब तहसीलदार Punjab exam. Alright, bye.